المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی حکمت کاملہ سے مختلف اعضاء اور جوایا ہے اور پھر آپ اندازہ کریں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر بھی مخلوقات کو بنایا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اگر زندگی انسان کو دی ہے تو اللہ رب العزت نے دیگر جانداروں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے مگر رب کریم نے حضرت انسان کو عقل کی نعمت عطا فرما کے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تمام جانداروں کے اوپر فضیلت عطا فرما دی ہے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اور پھر آپ ایک اور بات کا اندازہ فرمائیں کائنات کے اندر مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ایک گھر ہو اس گھر میں اگر 5-10 افراد رہتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے ذہن مختلف ہوتا ہے کسی کا ذہن ایک دوسرے کے ذہن کے ساتھ ملاپ نہیں کرتا ہے اور پھر اسی طرح آپ تو
محلے کی سطح پر بھی اسی طرح معاملہ ہے. اور پھر آپ اگر مذاہب میں دیکھ لیں تو ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ ملکوں میں دیکھ لیں تو ایک ملک والا دوسرے ملک والے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہے. میرے عزیز دوستو، جس طرح گھر کے افراد کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، محلے کے افراد کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، مذہب والوں کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، ملک والوں کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر معاملے میں اختلاف موجود ہے، سارے ہی متفق ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ سارے ہی کہتے ہیں کہ پورے عالم میں ایک فساد برپا ہے. جس کو مرضی آپ جا کے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ یار پتہ نہیں یہ فساد کیوں برپا ہے، کیوں برپا ہے، کیوں برپا ہے. ہر بندہ پریشان ہے. آپ جس کو مرضی جا کے دیکھ لیں، گھر کی سطح پہ جا کے پوچھیں گے تو لوگ پریشان ہیں، محلے کی سطح پہ جا کے پوچھیں گے لوگ پریشان ملیں گے، مذہب کی سطح پہ جا کے پوچھ لیں تو بھی پریشان ہیں، چاہے جس مرضی مذہب سے تعلق ہو، ہر بندہ پریشان آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. اچھا، اب جو ہر بندہ پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں پریشانی ہے، اب لوگوں نے سوچا، کسی نے کہا کہ یار معیشت ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کی کچھ فکر کر لی جائے، لوگوں کا روٹی پانی چلنا شروع ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے گی. اب لوگوں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. آپ اندازہ کریں کہ غریب بندہ آپ کو اتنا پریشان نظر نہیں آئے گا جتنا کروڑوں کا مالک آپ کو پریشان نظر آئے گا. کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں پھر پریشان ہے. بھائی لوگوں نے تو کہا کہ مال آ جائے گا پریشانی ختم ہو جائے گی. اب اس کے پاس تو ایک فیکٹری نہیں 10 فیکٹریوں کا مالک ہے، تو اس کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ پھر لوگوں نے کہا کہ جناب اگر تعلیم آ جائے نا تو پریشانی ختم ہو جائے گی. اب آپ اندازہ کریں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں میرے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت میں نے 16 جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں، میرے پاس ڈگری موجود ہے. ڈگری نہیں، ایک نوجوان کہتا ہے میرے پاس ڈگریاں موجود ہیں، لیکن کہتا ہے حضرت میں پھر پریشان ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. بھائی آپ نے تو کہا کہ تعلیم مل جائے پریشانی ختم ہو سکتی ہے، یہ بیچارہ پھر بے سکونی میں ہے. معیشت اچھی ہو جائے پریشانی ختم ہو سکتی ہے، لیکن امیر بندہ بھی پریشان ہے، پڑھا لکھا بھی پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی ختم ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ اس کا جواب سبحان اللہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے آ کے دیا ہے. انہوں نے فرمایا یاد رکھو، سکون اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو وہ نہ مال میں ہے، نہ دنیا کی تعلیم میں ہے، نہ دنیا کی ڈگریوں میں ہے، نہ دنیا کے مال و زر میں ہے. سکون کس چیز میں ہے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس دل کو نور ایمان کے ساتھ منور کر لو، دل تمہارا منور ہو جائے گا، تمہیں ساری کائنات منور نظر آ جائے گی، آپ کو ساری کائنات منور نظر آ جائے گی. اللہ اکبر. آپ کو پریشانیوں کا حل مل جائے گا. اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے رب نے قرآن میں عجیب جملے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون.
میرے بندو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اچھا اب آپ ذرا اس آیت میں تھوڑا اگر غور فرمائیں تو ہمیں اس میں ایک خوشبو ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کائنات میں اگر دیکھ لیں تو آپ کو لوگوں کے دو طبقے مل جائیں گے، ایک امیر دوسرا غریب. کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. اب جو امیر ہوتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے مالدار کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بندے اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مال تیرے لیے کافی ہو جائے گا. آپ اس چکر میں نہ رہنا، اس گمان میں نہ رہنا کہ جی مال میرے لیے کافی ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. دوسرا طبقہ غریب کا طبقہ ہے. آپ اگر اندازہ کریں امیروں کے پاس مال ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی. امیروں کے پاس مال ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی ہے. آپ امیر بندے سے پوچھیں جی آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گا جی بچے دو ہی اچھے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ہیں جی بچے دو ہی اچھے، ہمیں زیادہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے. مال بہت ہوتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا امیرو تمہارے پاس مال ہے، اس مال پہ اترانا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بنون بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے. غریب بندے سے پوچھو سبحان اللہ جی آپ کے پاس مال ہے؟ کہتا ہے نہیں ہوتا ہے. غریب کے پاس اولاد ہوتی ہے مال نہیں ہوتا. غریب بندے سے پوچھیں آپ کے کتنے بیٹے ہیں جی کتنے بچے ہیں؟ وہ کہے گا جی ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں. ہم ایک ایسے بندے کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ 22 بچے عطا فرمائے ہیں. مال نہیں ہے. اللہ اکبر. جی ہاں. اور پھر ایک ایسے بھی ہم مولوی صاحب کو جانتے ہیں ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے ماشاءاللہ 29 بچے ہیں لیکن مال نہیں ہے. امیر کے پاس مال ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی. غریب کے پاس اولاد ہوتی ہے مال نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے دونوں کو مخاطب کر کے فرما دیا امیرو تم بھی سن لو. اللہ کیا سنے؟ اللہ فرماتے ہیں سن لو کل قیامت کے دن نہ تیرے مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے. اے اللہ کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو بندہ گلشن عدیل کے اندر رہتے ہوئے اپنے دل پر محنت کرتا رہا، دل سے گندگیوں کو نکالتا رہا، دل سے گناہوں کی ظلمت کو دھوتا رہا، یہ صاف ستھرا دل لے کے جب کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں پیش ہوگا یہ دل اس کے کام آ جائے گا. یہ دل کام آ جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم مضغہ. میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اکبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہر بندے کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت اگر وہ ٹھیک ہو جائے صلح الجسد کلو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کے ٹھیک ہو جانے سے سارے کا سارا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اذا فسدت اگر وہ خراب ہو جائے. جس کا معاشرے میں فکر لگی ہوئی ہے وہی جواب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اذا فسدت اگر یہ خراب ہو جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسد الجسد کلو. سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا بتاؤں وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب. لوگوں سن لو وہ تمہارا دل ہے، وہ آپ کا دل ہے. جی ہاں. جس کا دل خراب ہو گیا
इंसान समझ हो गया, समझ लो सारे का सारा इंसान ठीक हो गया। और फिर दिल की एक अहमियत है, दिल की एक अहमियत है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। ये दिल देखने में छोटा है, ये दिल देखने में छोटा है, मगर ये संवर जाए तो ये सोने का टोटा है, ये सोने का टोटा है। आप अगर अंदाजा करें इस दिल की तमाम वजूद के ऊपर सरदारी चलती है। मैंने एक बंदे से कहा भाई आप पानी पी लें, उसने कहा नहीं मेरा दिल नहीं चाहता। कहता नहीं कहता है। अब आप अंदाजा करें पानी पीना कोई दिल का काम है? दिल का काम तो नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं जी मेरा दिल नहीं चाहता। मां बेटे से कहती है मेरे बेटे रोटी खा ले, कहता है नहीं अम्मी मेरा दिल नहीं चाहता। क्या रोटी खाना दिल की है? अल्लाह अकबर। मां कहती है बेटे तू दूसरे भाई के साथ बात नहीं करता, बोलता नहीं है। हमने कहा भाई आप अपने हमसाए से बात क्यों नहीं करते? तो इस आगे से क्या जवाब देता है? कहता नहीं मेरा दिल नहीं करता। अल्लाह अकबर। क्या भाई बात करना दिल का काम है? नहीं, दिल का काम नहीं है। रोटी खाना दिल का काम नहीं है, पानी पीना दिल का काम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। फिर बात हमें समझ में आती है कि दिल सरदार की हैसियत रखता है, दिल जिस्म के अंदर सरदार की हैसियत रखता है। अगर ये ठीक हो जाए समझ लो माशरा ठीक हो जाता है, अगर ये खराब हो जाए माशरा खराब हो जाता है, माशरा खराब हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कभी देख कोई काम नहीं होता है, बाजार में क्या होता है भाई आपको यहां क्या काम है? क्या आपने कपड़े खरीदने हैं? कहता है नहीं। आपने जूते खरीदने हैं? कहता है नहीं। आपने कोई कॉपी पेंसिल खरीदनी है? कहता है नहीं। फिर भाई यहां क्या करने आए हो? अल्लाह अकबर। कहता है ऐसे ही आया हूं। कहता है ऐसे ही आया हूं। अब जो कहते ना ऐसे ही आया हूं, उसका मतलब ये होता है ये ऐसे नहीं आया, ये बदनजरी करने के लिए आया हुआ है, ये बदनजरी करने के लिए आया हुआ है। अल्लाह अकबर। हत्ता के बाजार तो आप छोड़ दें, मेरे इल्म में वो बात भी है जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा कि 10 मुहर्रम जिस दिन लोग जुलूस निकालते हैं और फिर वावेला करते हैं, गम मनाते हैं, लोगों को देखा है जो सिया कपड़े कढ़ाई करवा के सिलवाते इसलिए हैं कि मैं पहन के जाऊंगा वहां मेरी महबूबा आई हुई होगी। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करो क्या वजह है? वजह क्या है? इसका दिल खराब है, इसका दिल खराब है। याद रखो जिसकी निगाह काबू में नहीं हो रही है, पीछे मतलब क्या है कि इसका दिल खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हां, हकीम से जाके पूछ लो जी ये बंदा, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं कब्ज उम्मुल मराज है, कब्ज उम्मुल अमराज है। भाई कब्ज होती है, वो कहते हैं सारे जिस्म का वजूद खराब हो जाता है, मर्जें लग जाती हैं। मेरे दोस्तों जिस तरह कब्ज हो जाए हकीमों की पैदा हो जाती हैं, मेरे दोस्तों इसी तरह सूफिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों में, अंबिया अलैहिस्सलाम की नजरों में जिस बंदे का दिल खराब हो जाए उसके अंदर भी गुनाहों की मर्जें लग जाती हैं, उस बंदे के अंदर गुनाहों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जी हां, इसलिए फिर नजरों की हिफाजत नहीं होती है, गैर महरम औरतों को देख रहा होता है, हत्ता कि बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जी हां, मेरे पास ऐसे ऐसे सफेद बालों वाले भी आए जो कहते हजरत कुछ दुआ करो, कुछ हमें जिक्र वजीफा बताओ कि हमारे बाल तो सफेद हो चुके हैं मगर हमारा दिल स्याह हो चुका है, हमारी नजरें अब भी काबू में नहीं है। अल्लाह अकबर। जी हां मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वजह क्या है? वजह यह है कि इसका दिल ठीक नहीं रहा, पूरा तो हो चुका है मगर मेरे दोस्तों अल्लाह अकबर कबीरा,
नजरें अब भी पाक नहीं हुई है, नजरें अब भी पाक नहीं हुई है। अब आप खुद अंदाजा कर लें तो फिर कितनी जरूरत है इस दिल को ठीक करने की, इस दिल को ठीक करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम शान में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, अल्लाह अकबर, आंखें अंधी नहीं होती, लाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं ये जो बंदा आपको बाजारों में बदनजरी करता मिलता है, जो आपको पार्कों के अंदर जाके बदनजरी करता मिल रहा है, दूसरों की बहू बहनों बेटियों की इज्जतों की तरफ नजरें डाल रहा है, शाहवत भरी नजरें डाल रहा है, अल्लाह फरमाते हैं इस दिल अंधा हो चुका है, इसका दिल अंधा हो चुका है, इसलिए ये फिर गुनाह भरी जिंदगियां गुजार रहा है, फिर इसकी नजर में मां बहन बेटी की हया नहीं रही है, इसकी नजरों में मां बहन बहू बेटी की इज्जत नहीं रही है। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब दिल ठीक होता है, दिल ठीक होता है, सुभान अल्लाह, हमने पढ़ा है अल्लाह अकबर कबीरा, वो माशरा भी कायम हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदन बन के हातम ताई की बेटी आई है, सफवाना कैदन बन के आई है, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हातम ताई की बेटी है, कैदन बन के आई है। मेरे महबूब ने फरमाया, सफवाना बता क्या चाहती है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे आजाद फरमा दें, आप मुझे आजाद कर दें। मेरे महबूब ने फरमाया, सफवाना, हमने सुना है तेरा बाप बड़ा सखी था, उसकी सखावतें मशहूर थी। फरमाया, सफवाना, तेरा बाप हमसे बड़ा सखी नहीं हो सकता है। फरमाया, सफवाना चली जा, तुझे मैंने आजाद किया, तेरी वजह से जितने कैदी तेरे साथ कैद होके आए हैं, मैंने सबको आजाद कर दिया, मैंने सबको आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर ये सफवाना जा रही है, जब जा रही है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफवाना ठहर जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस शरीफ में आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवान मुहाफिज सहाबा उसको दिए, फरमाया इसको ले जाओ, इसको इसके कबीले तक छोड़ के आना। सहाबा जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब जो है दिन भी आए हैं, रातें भी आई हैं, अल्लाह अकबर, जंगल भी आए हैं, वीराने भी आए हैं, बस्तियां भी आई हैं, शहर भी आए हैं, हत्ता कि सफवाना कबीले में पहुंची है। उसके भाई अदी बिन हातिम को पता चल गया कि मेरी बहन सफवाना आ रही है। अल्लाह अकबर। वो कबीले से बाहर आ गया, आके जो खड़ा हुआ, उसने अपनी बहन से पूछा, कहा, सफवाना ये तो बता, ये जवान तेरे साथ हैं, तूने दिन में भी इनके साथ सफर किया, रात के अंधेरे में भी सफर किया, जंगल में भी सफर किया, शहरों में भी सफर किया, अगर इन्होंने तेरे साथ कोई ज्यादती की हो, तेरी आबरू रेजी की हो, मुझे बता, मैं तेरा अभी इनसे बदला लेता हूं। मेरे दोस्तों सुनो, सफवाना के जुमले सुनो, दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना। सफवाना ने अपने भाई अदी से कहा, अदी कहने को तू मां जाया है, अदी कहने को तू मां जाया है, लेकिन अदी याद रख ले, जो हया, जो गैरत मुझे इनकी नजरों में नजर आई है, वो मुझे तेरी नजरों में भी नजर नहीं आती है, वो तेरी नजरों में भी नजर नहीं आई है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, दिल ठीक हो चुका है, दिल ठीक हो चुका है। और सुनाऊं, क्या आज हमारे माशरे में ऐसा है? अल्लाह अकबर कबीरा। एक राइटर ने एक फर्जी तहरीर लिखी है, सुनो उसने क्या लिखा। वो कहता है, एक जवानुल उमर औरत है, जो है अपने घर से बाहर निकली है। जब घर से बाहर निकली है, कहती है रात का खूब अंधेरा छा चुका था। कहती है मैं रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में मुझे कुत्ता नजर आ गया, रास्ते में मुझे कुत्ता नजर आ गया। कहती है मुझे उससे कोई डर नहीं लगा, मुझे उससे कोई डर नहीं लगा। अल्लाह अकबर। फिर कहती है मैं आगे चली गई,
راستے میں مجھے سانپ نظر آ گیا. کہتی ہے مجھے اس سے بھی کوئی ڈر نہیں لگا, کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا. پھر کہتی ہے میں تھوڑا جو آگے چلی گئی مجھے ایک انسان نظر آ گیا, مجھے ایک انسان نظر آ گیا. کہتی ہے مجھے کتے سے کوئی ڈر نہیں لگا, مجھے سانپ سے کوئی ڈر نہیں لگا, لیکن رات کی تاریکی میں مجھے انسان سے ڈر محسوس ہو گیا, انسان سے ڈر محسوس ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے دوستوں میرے عزیزوں, ہر کوئی اپنی عزت غیر محفوظ سمجھ رہا ہے, ہر کوئی اپنی عزت غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. اور ایک معاشرے کا آپ کو بتاؤں جہاں دل ٹھیک ہو چکے تھے, جہاں میرے محبوب نے لوگوں کے دلوں کو ٹھیک کر دیا تھا, سبحان اللہ. اور پھر وہاں وہ کیسا معاشرہ بن چکا تھا کہ میرے عزیز ساتھیوں, میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہیں, میرے محبوب نے اعلان کیا ہے قولو, لوگوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. لوگ جمع ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز ساتھیوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے دشمن ہیں. میرے محبوب نے ان سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ربنا لک مرارا ما وجدنا کا الا صدقا. کہا محبوب اے محمد ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا, ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا, ہم نے آپ میں سچائی دیانتداری کے سوا کچھ نہیں پایا, کچھ نہیں پایا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, پھر میرے محبوب نے ایک معاشرہ تشکیل دیا ہے. میرے عزیز دوستو میرے عزیزوں, اب دل ٹھیک ہو چکا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ وہی میرے محبوب نے جو اعلان کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. میرے عزیزوں اللہ اکبر, وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے ہم نے آپ کا تجربہ کر لیا, ہم نے آپ کو چیک کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. پہلا پتھر جو میرے محبوب پہ پڑا ہے وہ کسی غیر نے نہیں, اپنے چچا ابو لہب نے مارا تھا, ابو لہب نے مارا تھا. اللہ اکبر. جو جان کے دشمن تھے, جو اللہ اکبر میرے محبوب کی بات کے دشمن تھے. سناؤں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن تھے, ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے. میرے عزیز دوستو, مگر وہی لوگ جب کبھی سفر پہ چلے جاتے, اور آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں کا سفر لمبا سفر ہوتا تھا, مہینوں کے سفر ہوتے تھے. میرے عزیز دوستو, وہی لوگ جو جان کے دشمن ہیں, میرے محبوب کی بات کے دشمن ہیں, وہی لوگ حدیث پاک میں آتا ہے جب سفر پہ جاتے تھے اپنا مال, اپنی جوان بیٹیاں صحابہ کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے, صحابہ کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے. اور ان سے بندہ پوچھے, میں نے تصور میں ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو بتاؤ, اور تم تو ان کے دشمن ہو, تم تو ان کے ساتھ یاری نہیں میں چھوڑ رہے ہو, اپنی جوان بیٹیاں صحابہ کے گھروں میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے کسی کے گھر میں چھوڑ کے جاؤ نا. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں جو حیا, جو غیرت, جو حفاظت ہمیں ان کے گھروں میں نظر آتی ہے وہ اپنے گھروں میں بھی نظر نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کے دل ٹھیک ہو چکے ہیں, دل ٹھیک ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو میرے عزیزوں, جی ہاں آج دل کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں آج ہم نے دیکھا انسان نے محنت کی ہے, محنت کی ہے, محنت کی ہے. اللہ اکبر. لوہے پہ محنت کی ہے میرے دوستو, اس کو جہاز بنا کے فضا میں اڑا دیا ہے. ٹنوں کے حساب سے لوہا ہوتا ہے, سبحان اللہ. دودھ اس کو فضا میں اڑائے پھرتا ہے, اڑائے پھرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو جو بندہ فضا کے اندر جہاز کو اڑائے پھرتا ہے, کبھی اس کو پوچھو اس کا اپنا دل کتنا ویران ہے, کتنا ویران ہے. یہ جس بندے نے کمکمے بنائے ہیں, یہ روشنیاں بنائی ہیں, یہ بلب بنائے ہیں, کبھی اس سے جا کے پوچھو, وہ آپ کو بتائے گا میرا دل بڑا ہی تاریک ہے,
मेरा दिल बड़ा तारीक है, वो दूसरों को रोशनियां देने वाला, अपने उसके मन में कोई रोशनी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? कभी दिल को ठीक करने की फिक्र ही नहीं की है, कभी दिल को ठीक करने की फिक्र ही नहीं की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम जवानों को देखते हैं, रात को सोते हुए करीमे लगा के सोते हैं, करीमे लगा के सोते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बोस्की के कपड़े पहनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई क्यों पहनते हो? कहता है मैं जरा खूबसूरत नजर आना चाहता हूं, मैं जरा खूबसूरत नजर आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी जात में कशिश पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे नौजवान, और करीमे लगा के कशिश ढूंढने वाले, और कपड़े अच्छे पहन के कशिश ढूंढने वाले, न कपड़ों में कशिश है न करीमों में कशिश है। हाँ, अगर कशिश का मुतलाशी है, इस दिल पर मेहनत कर ले, दिल से गंदगी निकल जाएगी, तेरी जात में खुद ब खुद कशिश पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। खुद ब खुद कशिश पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इसकी बड़ी जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखो, जो इस दिल पर मेहनत कर लेता है, एक नूर अता फरमा देते हैं, एक नूर अता फरमा देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, ईमान वालो, वो करीमे लगाने वालों, ओ अच्छे कपड़े पहनने वालों, जरा सुनो सुनो सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम कशिश ढूंढना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह अकबर जाज़िब नजर बनना चाहते हो, तो मेरा रब फरमाता है, इन तत्तकुल्लाह, तकवा को इख्तियार कर लो, यजअल लकुम फुरकाना, मेरा अल्लाह तुम्हें नूर फुरकान अता फरमा देगा, नूर फुरकान अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नूर फुरकान क्या चीज होती है मेरे दोस्तों? नूर फुरकान होता है, बंदे को हक और बातिल के दरमियान तमीज का पता चल जाता है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, सैयदना जुनैद, एक बंदा आ गया, उसने पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, जुब्बा पहना हुआ है, आके कहता है, हजरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? हजरत ने ऐसी आंखों को बंद किया, खोल के उसकी तरफ देखा, फरमाया, ओ ईसाई के बेटे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जाहिर में सूफी नजर आ रहा है, पगड़ी पहनी हुई है, जुब्बा पहना हुआ है, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी हुई है, बिल्कुल मुसलमानों जैसा हुलिया बनाया हुआ है। हजरत ने क्या फरमा दिया? हजरत ने ऐसे दिल की तरफ देखा, देख के उसकी तरफ फरमाया, ओ ईसाई के बेटे, तेरी हिदायत का वक्त आ चुका, तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। अल्लाह अकबर। ये नूर अपने बंदों को अता फरमा देते हैं। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान आ गया, रास्ते में आते हुए उसने बदनजरी कर ली, गैर महरम औरत की तरफ देख लिया, हजरत की मजलिस में आ गया। हजरत ने जो उसको देखा, देखते फरमाया, लोगों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मजलिस में आते हैं और उनकी निगाहों से जिना टपक रहा होता है, हमारी मजलिस में आ जाते हैं और उनकी निगाहों से जिना टपक रहा होता है। अल्लाह अकबर। ये कैसे हासिल होता है? ये दिल पर मेहनत करने से हासिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनाऊं, जिन्होंने दिल पर मेहनत कर ली, दिलों को चमका लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर अल्लाह ने उनको क्या क्या नेमतें अता फरमाई। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उमर ये मामला है, इसमें तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है? हदीस पाक में आता है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मशवरा जमीन पर मेरे महबूब को देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उमर के अल्फाज को कुरान बना के नबी सलाम पर नाजिल फरमा देते। अल्लाह अकबर। क्या वजह है? कि उमर ने दिल को ठीक कर लिया था, दिल को ठीक कर लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इस मामले में मेरे अजीज दोस्तों औरतें भी पीछे नहीं रही हैं, औरतें भी पीछे नहीं रही हैं। मेरी और तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी है, अली आ गए, अल्लाह अकबर, फरमाया फातिमा। फातिमा पूछती है अली क्या चांद निकल आया, क्या चांद निकल आया? माँ फातिमा ने जब सवाल, उन्होंने फरमाया हाँ फातिमा चांद निकल आया, क्या आपने नहीं देखा है, क्या आपने नहीं देखा है? माँ फातिमा कहती है नहीं अली मैंने नहीं देखा है। फातिमा आपने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं देखा है? अली रजी अल्लाह अन्हु को जवाब में फरमाती है अली मैंने चांद को इसलिए नहीं देखा, मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गया, मैं चांद देखती हूं। फरमाती है मैंने जैसे ही नजरें उठाने का इरादा कर लिया फिर मेरे दिल में ख्याल आ गया फातिमा कहीं ऐसा ना हो कि तू चांद को देखे, ऐन उसी वक्त में कोई गैर मर्द भी चांद को देखे। फातिमा तेरी और गैर मर्द के इकट्ठे कहीं चांद पे नजर न पड़ जाए। फरमाती अली मैंने इस खतरे से अपनी नजरों को नीचे कर लिया कि मेरी और गैर मर्द की इकट्ठे चांद पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ ये वो माशरा है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ और सुनाऊं, आज हम अपने घर में गोश्त पका के खाते हैं, बिरयानियां पका के खाते हैं, हमारा हमसाये को शोरबा भी नसीब नहीं होता, शोरबा भी नसीब नहीं होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कभी हमने फिक्र की? अल्लाह अकबर। जी हाँ हमारे कुत्ते देसी घी खाते हैं, जी हाँ हमारे कुत्ते दूध पीते हैं और मेरे हमसाये का बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा वो ठंडे पानी को भी तरस रहा होता है, ठंडे पानी को भी तरस रहा होता है। क्या कभी हमने सोचा? अल्लाह अकबर। क्यों? हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। क्या वजह है? वजह पीछे ये है कि दिल ठीक नहीं है, दिल ठीक नहीं है। और सुनो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल ठीक कर दिए थे। सुनो अल्लाह अकबर, हसन और हुसैन बीमार हो चुके हैं, बीमारी खत्म नहीं हो रही है। मेरी और तेरी माँ फातिमा ने मन्नत मान ली है, ए अल्लाह अगर मेरे शहजादों को आप तंदुरुस्ती अता फरमा दे, सेहत अता फरमा दे, ए अल्लाह हम 3 दिन रोजा रखेंगे। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने सेहत अता फरमा दी। अब रोजा रखा है, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, अली रजी अल्लाह अन्हु कुछ पकाने के लिए ला चुके हैं। जब घर में लाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अजीज दोस्तों सुभान अल्लाह, इफ्तारी का वक्त करीब आ चुका है, दरवाजे पे दस्तक हो चुकी है। जब दरवाजे पे दस्तक हुई है, अली जरा पता तो करो दरवाजे। जब दरवाजे पे जाते हैं वहां एक बंदे को खड़ा पाते हैं, फरमाते भाई बताओ क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं मिस्कीन हूं, मैं मिस्कीन हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? मिस्कीन कहता है मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दरवाजे पे आया हूं, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अंदर चले जाते हैं, फातिमा दरवाजे पे मिस्कीन आया खड़ा है, कहता है कई दिनों का भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ फातिमा ने जितना खाना था अली रजी अल्लाह अन्हु को दिया। फरमाया अली ये मिस्कीन को दे आओ, वो पेट भर के खा ले, हम पानी से रोजा इफ्तार कर लेंगे, हम पानी से रोजा इफ्तार करेंगे। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजे पे जाके पता किया जी कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। एक बच्चा खड़ा है। जी बेटा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? वो बच्चा रो के कहता है अली मैं यतीम हूं, मैं यतीम हूं, कई दिनों का भूखा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दरवाजे पे आया हूं, मुझे खाना चाहिए। मैं सैयदना अली अंदर जाते हैं, फातिमा जी अली दरवाजे पे यतीम आया खड़ा है, क्या कहता है? कहते हैं कई दिनों का भूखा हूं, खाना चाहिए। माँ फातिमा ने
सारा खाना उठा के अली को दे दिया। अली ले जाइए, यतीम को दे दो, उसको कहो पेट भर के खा ले, हम पानी से रोजा इफ्तार कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तीसरे दिन रोजा रखा है, दरवाजे पे कौन है? एक बंदा खड़ा था। जी आप कौन है? कहा मैं कैदी हूं, आज ही रिहा हुआ हूं। अल्लाह अकबर। और फिर यहां मदीने में मेरा कोई मिलने वाला नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। अली रजी अल्लाह अन्हु अंदर जाते हैं, फरमाते हैं फातिमा, दरवाजे पे कैदी आया खड़ा है, कहते भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को माँ फातिमा ने सारा खाना उठा के दे दिया। फरमाया अली ये कैदी को दे दो, उसको कहो पेट भर के खा ले, हम पानी से रोजा इफ्तार कर लेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे दोस्तों ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है अल्लाह अकबर कि मेरे महबूब ने दिल ठीक कर दिए थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों पे मेहनत की थी, दिल ठीक हो चुके थे, फिर अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दी जा रही। घर में पता करवाया मेहमान के लिए खाना है, कहा जी नहीं कोई खाना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया सहाबा मेरा मेहमान है, कौन है जो उसको मेजबानी करे? अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं आका मैं मेहमान नवाजी करूंगा। फरमाया बहुत अच्छा है, ले जाओ। जब लेके चले गए, घर वाली से फरमाया खाना है? मोहम्मद अरबी का मेहमान है, खाना है? उन्होंने कहा हाँ खाना तो है, सिर्फ एक बंदे का खाना है, या आप खुद खा ले या उसको खिला दे। फरमाते हैं कोई बात नहीं है, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये खाना मेहमान को खिला दो, मेहमान को खिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर कहा अल्लाह अकबर ऐसे करना, दस्तरखान लगा देना, खाना रख देना, ठीक करने के बहाने बुझा देना, मेहमान खाता रहेगा, मैं भी हाथ हिलाता रहूंगा, वो ये समझेगा कि ये खा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी खैरी है, मेहमान पेट भर के खा लेगा, मैं भूख बर्दाश्त करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों फिर क्या हुआ है? खाना खिला दिया है, खुद भूखे रहे हैं, किसी को नहीं पता है, वो तो देख रहा होता है, वो तो देख रहा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह हुई है, मेरे महबूब की खिदमत में पहुंचे हैं, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ जाके मेरे महबूब को बता दो वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। फरमाया मेरे महबूब ये जो तूने यार कदमों में बिठा के रखे हैं, जिनके दिलों पे तूने मेहनत कर दी हुई है, इनका हाल अब ये हो चुका है, खुद भूखे रहते हैं, अब खुद मुशक्कतें उठाते हैं, दूसरों के लिए सहूलतें पैदा कर देते हैं। और आज क्या हम ऐसा करते हैं? कोई भी नहीं करता है। अल्लाह अकबर। हम रास्ते में जा रहे होते हैं मेरे दोस्तों, हम रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हम दूसरों के लिए वबाले जान बन जाते हैं, हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कभी हमने सोचा इस बात को? कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। जी हाँ, आज हम कहने को अमीर हैं, कहने को हम बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, और क्या फायदा तेरी बिल्डिंगों का, क्या फायदा तेरी गाड़ियों का, क्या फायदा तेरे घर में बिरयानियां खाने का, जो तेरा हमसाया ही भूखा बैठा है, जो तेरा हमसाया ही भूखा बैठा है, जो तेरे मोहल्ले के अंदर तू हर साल हज उम्रे पे जाता है और मोहल्ले के अंदर बयाने के लिए बूढ़ी हो रही है। अल्लाह अकबर। उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी बेटी का निकाह कर सके, निकाह कर सके। कभी हमने सोचा? कभी भी नहीं सोचा है, कभी भी नहीं सोचा है। और कब सोचेंगे? कब हम सोचेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जब दिल संवर जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, और फिर जिस दिल की बड़ी अहमियत है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है, सुभान अल्लाह, वाकया लिखा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक हम्माम में नहाने के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं। जब हम्माम में पहुंचे नहाने के लिए, हम्माम वाले से फरमाते हैं, हम्माम वाले मैंने नहाना है। अल्लाह अकबर। हजरत के कपड़े थोड़े
बोसीदा से पहने हुए थे, इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, और अल्लाह वालों की जिंदगी कोई इतने नखरे नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब जो चले गए उसने अंदाजा कर लिया कि ये कोई फकीर आदमी है, ये नहाएगा तो ये मुझे पैसे कोई नहीं देगा, इसलिए उसने एक गंदा सा हमाम नहाने के लिए दे दिया, जहां पानी भी नहीं इतना अच्छा आता था, और फिर साबुन तौलिए का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, जब वहां हजरत चले गए नहाने के लिए तो देखा, हजरत को उसकी नीयत का अंदाजा हो गया कि ये बंदा मुझे फकीर समझता हुआ इसने ये मेरे साथ मामला किया है। हजरत वापिस आ गए और आके अपने खादिम से फरमाया, आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, मेरे पास 100 दिरहम मौजूद हैं। हजरत ने फरमाया, ये 100 दिरहम इस हम्माम वाले को दे दो, इसको दे दो। अल्लाह अकबर। अंदाजा करो, उस जमाने के अंदर हम्माम में नहाने के लिए 1 दिरहम काफी हुआ, ये 100 दिरहम इसको दे दो। और फिर उसको फरमाया, हम्माम वाले, ये 100 दिरहम तू ले ले, और फिर मैंने तेरे हम्माम में नहाना भी नहीं है, नहाना भी नहीं है, ये 100 दिरहम भी तुझे देता हूं, तेरे हम्माम में नहाऊंगा भी नहीं। और फिर 1-2 जुमले इरशाद फरमाए, सुनने के काबिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, हम्माम वाले, तूने मेरे कपड़ों को देखा, तूने मेरे कपड़ों को देखा, तूने मेरे कपड़ों को देख के मेरे हैसियत का अंदाजा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, अलैया सियाबुन, मेरे ऊपर जो कपड़े हैं, लो युबाउहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इन कपड़ों को बेच दिया जाए बिफलसिल, ये तो 1 फुलस के बदले में बिकेंगे। मुमकिन है 1 फुलस भी बढ़ जाए मेरे कपड़ों की कमाया। हम्माम वाले, सुन ले, इन कपड़ों के अंदर जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिनसे तूने मेरी जात का अंदाजा किया, ऐसी बात नहीं है। कहा, हम्माम वाले, अगर मेरे कपड़ों की कीमत 1 फुलस है तो कहा, इन कपड़ों के अंदर छुपी हुई एक जान है। सारी कायनात के खजाने अगर मिल जाए तो फिर भी मिल के भी इस जान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इस जान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब दिल बन जाता है सारी कायनात से कीमती हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये दिल कहां बनते हैं, ये दिल ठीक कैसे होंगे? सवाल है ना, ये दिल ठीक कैसे होंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी ये दिल ठीक होते हैं साहिब दिल के कदमों में बैठ के, साहिब दिल के कदमों में बैठ के, अल्लाह वालों के कदमों में बैठ के दिल ठीक हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आखिरी वाक़या सुनो, अपनी बात को फिर समेटते हैं। सुभान अल्लाह। इंडिया के अंदर एक शायर हैं ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इंडिया में एक दूसरे शायर हैं सुभान अल्लाह जिगर मुरादाबादी। अल्लाह अकबर कबीरा। मजजूब रहमतुल्लाह अलैह मुशायरों में जाते हैं, जिगर भी मुशायरों में जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो थोड़े मस्कनत नजर आती है, सादगी नजर आती है, और फिर जिगर का थोड़ा टौर टप्पा नजर आता है। जिगर ने एक दिन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया, कहा, मजजूब साहब, आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई? आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई? अल्लाह अकबर। तो मजजूब ने कहा जिनका नाम हजरत अक्दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, मैं उनके कदमों में जाके बैठा, अल्लाह ने उनके कदमों की बरकत से मेरी मिस्टर की टर को मिस कर दिया। हजरत ने जब सुन लिया जिगर ने, तो जिगर ने कहा, कभी मुझे भी वहां ले चलो, कभी मुझे भी वहां ले चलो। तो मजजूब ने कहा, नहीं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। जी क्यों नहीं जा सकता? आप इसलिए नहीं जा सकते कि आप शराब पीते हैं, आप शराब पीते हैं। और फिर अल्लाह अकबर, जिगर शराब भी इतनी पीता था कि पानी की जगह भी जिगर शराब ही पिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पता चल गया कि हजरत थानवी का मिजाज सख्त है, आप वहां नहीं जा सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों, फिर क्या हुआ है? जब ये जुमले कह दिए तो जिगर का दिल टूट गया। जिगर ने कहा, अच्छा मैं नहीं वहां जा सकता। मजजूब ने कहा, नहीं,
आप नहीं वहां जा सकते हो। कहा अच्छा फिर जब आप चले जाए ना और फिर कहना हजरत जिगर आना चाहता है मगर गुनहगार इतना है, शराब पीता है, आपकी मजलिस में आने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। मजदूर रहमतुल्लाह अलैह कुछ महीनों के बाद चले गए, हजरत से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ के बाद हजरत से अर्ज करते हजरत वो जो जिगर है, हाँ हाँ क्या हुआ जिगर को? हजरत थानवी फरमाते हैं क्या हुआ जिगर को? कहा हजरत जिगर आपके पास आना चाहता है। तो फरमाया फिर ले आते ना। कहा हजरत मैंने तो उसको मना कर दिया। हजरत थानवी फरमाते हैं मजदूर साहब आपने क्यों उसको मना किया? आप उसको ले आते मेरे पास। कहा हजरत वो तो शराब पीता है, वो तो शराब पीता है और इतनी कसरत से पीता है ये पानी की जगह भी शराब ही पीता है। तो हजरत मैं उसको भला कैसे लाता? फरमाया मजजूब साहब आपने गलत की, को खानकाह में नहीं अपनी बैठक में ठहरा लेता, और जब मेहमान को बैठक में अपने घर में ठहराया जाता है तो मेहमान जैसी जिंदगी गुजारे हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। वो नमाज पढ़े या शराब पिए हम उसको मना न करते। अब जब वो कहे तो आप उसको ले आना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं, बड़े दिल होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ वो मोहब्बतें देते हैं, प्यार बांटते हैं, इस तरह लोगों को करीब कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों अब जब फिर जिगर ने कहा मैं जाना चाहता हूं, मजदूब ने कहा हाँ हाँ आप आ जाओ, हजरत ने तो हुक्म फरमाया है कि जिगर को जरूर ले आना। अच्छा जिगर ने जब सुन लिया उसकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत ने मेरे बारे में फरमाया है कि ले आना? हाँ हाँ आप ही के बारे में फरमाया है। कहा अच्छा फिर मुझे ले चलो। जिगर को ले आया है मजदूब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत थानवी से मुलाकात हो चुकी है। मजदूब जिगर ने कहा हजरत मैं आपसे 4 दुआएं करवाना चाहता हूं। फरमाया हाँ जिगर साहब बताओ मैं कर देता हूं। कहा हजरत पहली दुआ मेरे लिए ये कर दो कि मेरी शराब छूट जाए, मेरी शराब से जान छूट जाए। दूसरी दुआ फरमा दो मेरे चेहरे पे सुन्नत जिंदा हो जाए। तीसरी दुआ फरमा दो मैं हज उम्रा कराऊं। चौथी दुआ फरमा दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। हजरत थानवी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ फरमा दी। जिगर वापस चला गया है। सुनो जरा सुनो, वो बंदा जो सारी जिंदगी पानी की जगह शराब पीता रहा अल्लाह वाले के कदमों में आया है, वापस गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जाते ही जिगर ने शराब को छोड़ दिया, जाते ही जिगर ने शराब पीना छोड़ दी है, चेहरे पे सुन्नत जिंदा कर ली है, उम्रा करके आ चुका है। अल्लाह अकबर। अब जिगर बीमार पड़ चुका है। जब जिगर बीमार पड़ा है तो फिर हुक्मा आ गए, डॉक्टर आ चुके हैं। कहा जिगर साहब ऐसा करो शराब अगर आपने छोड़नी है तो यकदम न छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ो। कहा अच्छा फिर क्या होगा अगर यकदम छोड़ी है? तो कहा आप मर जाएंगे। कहा अगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूं तो क्या होगा? कहा फिर आप कोई 10-20 साल जिंदा रह लेंगे। कहा अच्छा। फरमाया सुनो जिगर के जुमले सुनो। उसने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह की नाफरमानी वाली 10 साल जिंदगी गवारा नहीं है, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली 1 महीने की जिंदगी गवारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर जिगर ठीक हो चुका है। फिर जिगर ने अपने ऊपर ही खुद ही शेर कह दिया। और जरा सुनो उसने कहा चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का। सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। तो मेरे दोस्तों वो बंदा जो सारी जिंदगी पानी की जगह शराब पिए, एक अल्लाह वाले के कदमों में आ जाए, अल्लाह ताला उसकी शराब छुड़वा देते हैं, उसकी जिंदगी के बुराइयों को खत्म फरमा देते हैं। तो क्या ख्याल है अगर मैं और आप जाएंगे तो क्या हमारी बुराइयां खत्म नहीं होंगी? क्या हमारे दिल ठीक नहीं होंगे? इसलिए इस फकीर की दरखास्त है मेरे अजीज दोस्तों, आज हम यहां बैठे बैठे दिलों को ठीक करने की नीयत कर लें और पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह से अर्ज कर दें कि इलाही मुकिर्रन बिज़्ज़नूबी वक़द दआका, इलाही अब्दुकल आसी अताका। अल्लाह मैं तेरे गुनहगार बंदा तेरी चौखट पे आ गया। अल्लाह इलाही अब्दुकल आसी अताका, ए मेरे अल्लाह
तेरा गुनहगार बंदा तेरी चौखट पे आ गया। इलाही अब्दुकल आसी अता का मुकिर्रन बिज़्ज़नूबी व कद्दा का। अल्लाह मैं कोई नेकियों का गठड़ नहीं लेके आया, अल्लाह मैं तो गुनाहों का बोझ लेके आया हूँ। मुकिर्रन बिज़्ज़नूबी व कद्दा का, अल्लाह गुनाहों का बोझ उठा के तेरी चौखट पे आ चुका और अल्लाह फिर आपसे माफिया मांग रहा हूँ। इल्तगफिर अंता लिज़ा का अहलू, अल्लाह अगर आप मुझे माफ फरमा दें तो ये बात आपको जचती है। व इल तदरुद फमन यरहम सिवा का, अल्लाह अगर तू माफ न करे सिवा मुझे कौन माफ करेगा, फिर कौन मुझे माफ करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों अभी इतना मजमा है, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। और मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत से मुझे आपको सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। और अगर हम अभी तौबा कर लेंगे आसमानों पे चरागा हो जाएगा, खुशियां हो जाएंगी। तो इसलिए ये फकीर अभी सबको तौबा के कलिमात पढ़ा देता है, सारे पढ़ लो ताकि तौबा हो जाए, अल्लाह से टूटा रिश्ता कायम हो जाए, अल्लाह से टूटा रिश्ता कायम हो जाए। और यही कलिमात बैत के कलिमात भी हैं। जो साथी बैत होना चाहे वो बैत की नीयत से पढ़ ले और तौबा की नीयत से तो सारे ही पढ़ लो। तो जो ये फकीर पढ़ाता है मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा मजमा पढ़ ले, कोई भी महरूम ना रहे। जी हाँ, देखना अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए। रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बतायब हो चुके हैं। अगर हमने इन कलिमात को सच्चे दिल से पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने हमारे पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा दिया है। खाता बिल्कुल साफ हो चुका है। पूरी मस्जिद में सच्चे दिल से अगर आपने पढ़ लिया तो अभी ऐसे बैठे हो जैसे पहले दिन माँ के पेट से पैदा हुए थे। अब चंद आमाल है, उनकी पाबंदी करो। एक सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा करो। दूसरा, सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब की सोनी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ो। पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तीसरा, रोजाना एक पारा कुरान की तिलावत करो। अब अगर एक न कर सको, जितना आसानी से पढ़ सको उतना पढ़ना जरूर करो। इसी तरह चौथी चीज है, चलते फिरते उठते बैठते दिल में सोने रब की याद को बसा के रखो। हथ कार वल दिल यार वल, हाथ काम काज में मशगूल हो, दिल सोने अल्लाह की याद में मशगूल हो। और पांचवी चीज है मुराकबा करना। मुराकबे का तरीका बड़ा आसान है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ और ये ख्याल करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, हमारे दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल कह रहा है और हम बैठे सुन रहे हैं। जुबान से पढ़ना नहीं है, सिर्फ दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना है, महसूस करना है। इंशाअल्लाह फकीर ने सबके दिलों पर तवज्जो कर दी है। अगर आप हजरात बैठ गए, देखना इंशाअल्लाह 2-4 दिन से ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि मेरा रब इस दिल से अल्लाह अल्लाह को जारी फरमा। और फिर छठी चीज राब्ता शेख है। फिर मेरे साथ राब्ता रखना है। राब्ते का आसान तरीका है, ये करीब में आपके उस्मानिया रेस्टोरेंट है, उसके सामने कबाड़ खाने के अंदर हमारी मस्जिद है, हमीदिया मस्जिद कबाड़ खाने वाली।
وہاں ہر جمعے کو عصر سے عشاء تک ہماری مجلس ذکر ہوتی ہے. ہم عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھتے ہیں اور مغرب سے عشاء مجلس ذکر ہوتی ہے. اس میں سب ساتھی شرکت کر لیا کرو. دیکھنا چند مجلسوں میں آ جاؤ گے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہمارے دل بدل گئے ہیں, واقعی ہمارے دل بدلنا شروع ہو چکے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان کے بارے میں مجھے ایک ساتھی نے بتایا, اس نے کہا حافظ قرآن ہے, لیکن وہ اس نے خود کہا نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ قرآن پڑھتا, کچھ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے حضرت صاحب نے میرے دل پہ جو انگلی رکھی ہے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. کہتا اب تو میرا خود جی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو, قرآن پڑھنے کو. اس لیے جڑو گے, دیکھنا فائدہ پہنچا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم مسکینوں کے دلوں کو کی دنیا کو بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.